Hello students. So in today's lecture we are going to talk about the algae. ठीक है. So algae के general characters देख लेते हैं. So algae general characters. ठीक है. So algae के general characters क्या है? आपने algae लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा, नाम algae आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी सुना होगा. तो जनरल कैरेक्टर्स क्या है algae के? तो see, normally when you talk about a plant, algae comes under the category of plants. So plants are supposed to have branches, stem, leaves, flowers, roots and all. But algae does not possess all these structures. algae के पास ना stem होता है, ना leaves होते हैं, ना branches होते हैं, ना flowers होते हैं. तो जो स्ट्रक्चर होता है, अगर आपने देखा algae, अगर हिंदी में बोलो उसे लील कहा जाता है. बारिश की सीजन में आप काफी देखोगे स्लिपरी सरफेस को स्लिपरी बना देता है. ठीक है. सो दैट इज नोन एज algae. There are different varieties of algae. I'm talking about one of them. ठीक है. So it does not possess any of the structure. So if you look it under a microscope, so it appears like a thallus, a flat structure, which is known as thallus. ठीक है. तो thallus से नाम आया Thallophyta. तो यहाँ लिखते हैं differentiation of plant body. Differentiation of plant body into stem, branches, leaves, and root is absent. Differentiation of plant body into stem, branches, leaves and root is absent. ये जो structures है, normally you find them in the higher plants. ठीक है. If you talk about a neem tree or a banyan tree, you see all those structures. But as algae is a lower category plant, उसमें ये सब structures देखने को नहीं मिलते हैं. तो जो structure appear होता है, जो flattened structure appear होता है, उसे क्या कहा जाता है? Thallus कहा जाता है. ठीक है. फ्लैट स्ट्रक्चर जो algae possess करता है is known as thallus. ठीक है. सो उसी पे से नाम क्या है? Thallophyta. उसी पे से नाम क्या है? Thallophyta. तो अपन बोल सकते हैं algae is a group of Algae is a group of plants which do not have stem, branches, leaves and root. ठीक है. So algae is a group of Thallophyta. Algae is a group of Thallophyta. तो यहाँ पे एक और टर्म मैं देता हूँ कि जैसे मैंने बताया कि the algae does not possess the stem, branches, leaves and roots. ठीक है. तो we have a specific term for it. It is termed as non-cormophytes. non-cormophytes. क्या कहा जाता है इन्हें? non-cormophytes कहा जाता है. वो प्लांट्स मतलब आगे की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, जिनके पास ना स्टेम, ब्रांच, लीव्स और रूट्स नहीं होते हैं, उन्हें non-cormophytes कहा जाता है. ठीक है. Now algae is a plant, so obviously the chlorophyll is present and it can perform photosynthesis as well. ठीक है. Chlorophyll is present. It is autotrophic. Done. So differentiation of plant body into stem, branches, leaves and root is absent. It is a flat structure, so it is known as thallus. Algae is a group of thallophytes. Chlorophyll is present and it's autotrophic. Now दूसरी बात अगर देखें तो algae जो होता है वो टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है ना. algae आर टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वेटिक. We are talking about the general characteristics.
सो हैबिटेट अगर देखें आल्गे का, तो हैबिटेट क्या है? इट इज aquatic as well as terrestrial. It is aquatic as well as terrestrial, जमीन पे भी रहता है और पानी में भी आपको देखने को मिलेगा, बट जनरली या मेजर पार्ट अगर आप देखो तो मेजर आल्गे आपको पानी में दिखेंगे. सो यहां पे मैं लिखूंगा मेनली एक्वेटिक, ठीक है. टेरेस्ट्रियल भी देखने को मिलेंगे, बट मोस्ट ऑफ दी आल्गे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक. आप लिखते हैं सम ऑफ आल्गे आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है. दूसरी बात देखिए, जो रिजर्व फूड होता है इनका, जैसे प्लांट के पास जो रिजर्व फूड होता है स्टार्च होता है, वैसे इनके पास भी क्या है? रिजर्व फूड is starch. The reserved food is starch. और एक और इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे जाननी है, अपन वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं हर प्लांट्स में, बट जो आल्गे होते हैं उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते हैं. एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल, दैट मीन्स वेस्कुलर बंडल में क्या आ जाएगा? जाइलम प्लस फ्लोएम. ये चीजें क्या है? एब्सेंट है, ठीक है. तो जो प्लांट जिनके पास जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट होते हैं, दैट टर्म्ड एज, वी हैव अ स्पेसिफिक टर्म, दैट इज एट्रैक्योफाइट्स. दे आर टर्म्ड एज एट्रैक्योफाइट्स, ठीक है. एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल इन प्लांट्स, that is absence of xylem and phloem, so such category of plants is known as atrachophytes, ठीक है. नॉन कॉर्मोफाइट्स में मैंने आपको बता दिया, एट्रैक्योफाइट्स में मैंने आपको बता दिया, ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, अगर रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तीन तरीके का रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. देयर इज वेजिटेटिव, ठीक है. देन देयर इज एसेक्सुअल एंड देयर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. वेजिटेटिव की अगर बात करें तो आपने लोअर स्टैंड में पढ़ा है कि आल्गे वेजिटेटिव रिप्रोड्यूस करता है. कौन से तरीके से करता है? सो देयर इज फ्रेगमेंटेशन, देयर इज फ्रेगमेंटेशन, ठीक है. एसेक्सुअल की अगर बात करें तो एसेक्सुअल किस तरीके से करता है? तो यहां पे स्पोर्स का प्रोडक्शन किया जाता है. किसका प्रोडक्शन किया जाता है? स्पोर्स का प्रोडक्शन किया जाता है, जिन्हें कहा जाता है माइटोस्पोर्स. क्या कहा जाता है? माइटोस्पोर्स कहा जाता है. एंड दिस माइटोस्पोर्स, दे कैन बी, इनके पास फ्लैजेला हो सकता है या फ्लैजेला नहीं हो सकता है, ठीक है. दे कैन बी फ्लैजिलेटेड एज वेल एज दे कैन नॉट बी फ्लैजिलेटेड. तो जो फ्लैजिलेटेड है उनके नाम तो आपको पता है, क्या कहा जाता है? अगर स्पोर के पास फ्लैजिला है तो दैट स्पोर इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज जूस्पोर. क्या कहा जाता है? इट इज टर्म्ड एज जूस्पोर. और अगर फ्लैजिला नहीं है माइटोस्पोर्स के पास, ठीक है, सो दैट इज नोन एज नॉन फ्लैजिलेटेड.
नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। और एग्जाम्पल्स देखिए नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स के, तो आपने पढ़ा है आगे ए प्लानोस्पोर्स है, ए प्लानोस्पोर्स है, ठीक है। देन देयर इज पाल्मेला स्पोर्स, पाल्मेला स्पोर्स है, एकाइनीट है, एकाइनीट, एंड देयर इज हिप्नोस्पोर, देयर इज हिप्नोस्पोर, ठीक है। सो फ्लैजिलेटेड स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है या जू स्पोर का फॉर्मेशन कब होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। सो दिस इज गोइंग टू बी ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशंस। जब फेवरेबल कंडीशंस होगी तब बनेंगे जूस्पोर्स, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस होगी, सो दिस इज फॉर द अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, नॉन फ्लैजिलेटेड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं आगे में। आई होप दिस इज क्लियर। ये मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स के नाम लिखे जो अनफेवरेबल कंडीशंस में फॉर्म हो गए फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ algae। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज 3 तरीके से। आइसोगेमस हो सकता है, एनाइसोगेमस हो सकता है, एंड ओगेमस हो सकता है। आइसोगेमस क्या होता है वो आपको पता है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके बताना आइसोगेमस मतलब क्या होता है, ठीक है। देन देयर इज ओगेमस एंड देयर इज एनाइसोगेमस, ठीक है। सो तीनों में क्या डिफरेंस है या तीनों का मतलब क्या है, आइसोगेमस, ओगेमस एंड एनाइसोगेमस में प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, पुराने लेक्चर्स में बात हो चुकी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बताना व्हाट दिस 3 टर्म्स मीन, ठीक है। ओके, नाउ जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, दो सेक्स ऑर्गन्स आर यूनिसेल्युलर, those sex organs are unicellular and non-jacketed, ठीक है। कौन, sex organs which are possessed by the algae, those are going to be unicellular and non-jacketed, ठीक है। but there's always an exception, एक exception case है, that is चारा। रेड में लिखते हैं exception, that is चारा। चारा इज एन algae, ठीक है। तो चारा के केस में क्या है, तो चारा के केस में इट्स एक्चुअली, मैंने लिखा यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड होते हैं ना सेक्स ऑर्गन्स, बट चारा के केस में द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, एंड jacketed, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो बॉडी सरफेस है, द बॉडी ऑफ चारा इज कवर्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, एंड दैट इज द रीजन चारा इज आल्सो नोन एज द स्टोन वॉट, ठीक है। आई होप जगह है यहां पे नीचे,
ओके, आई रब दिस डाउन, ऊपर वाला मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, इन केस ऑफ चारा body of chara is covered by calcium carbonate. ठीक है, so that is the reason chara is also known as stone water. It is also known as stone water. ठीक है, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट का लेयर आ जाएगा ना तो काफी टफ अपीयरेंस दिखेगा, काफी स्टोन टाइप अपीयरेंस दिखेगा, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, स्टोन वाटर कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर है। नाउ एक और चीज होती है, जैसे कि नॉर्मली अपन जब रिप्रोडक्शन की बात करते तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट होते हैं, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, वो फ्यूज होके क्या बनाते हैं, दे फ्यूज एंड दे फॉर्म जाइगोट, और जाइगोट से क्या बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप होता है। ठीक है, और ये एम्ब्रियो आगे जाके क्या बनता है, दिस डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, इट डेवलप्स इनटू अ new individual. So there is a gamete, there is a zygote, embryo and new individual. This is a part of sexual reproduction. कि गैमेट बनेगा, गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट बनाएगा, जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। बट इन केस ऑफ algae there is no formation of embryo. एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, so as the embryo is not formed, क्या लिखेंगे, एम्ब्रियो फॉर्मेशन is absent in algae. So they are known as non-embryophytes. So they are known as non-embryophytes because embryo formation absent है algae के अंदर। higher plants के अंदर आपको embryo formation होता हुआ दिखेगा, but in the case of algae, algae is a lower plant, so embryo formation होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, now according to Whitaker classification, algae is included in plant kingdom. According to Whitaker classification, algae is included in plant kingdom. It's included in the plant kingdom, and it has been categorized into, the algae is categorized into green algae, and there is brown algae, and there is red algae. The green algae is known as chlorophyceae. The green algae is known as chlorophycea.
ठीक है. The brown algae is known as Phaeophyceae. And the red algae is known as Rhodophyceae. ठीक है. So algae is classified or grouped into green algae depending on the color. ठीक है. Green algae, brown algae, red algae, that is Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. ठीक है. So now we'll talk about each of these algae in details. So I'll start with the green algae. So if we talk about green algae, the green algae is mainly freshwater. It is mainly freshwater. ठीक है. एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं यहां पे तो दैट इज Spirogyra and Ulothrix. Spirogyra and Ulothrix. ठीक है. मेनली तो फ्रेश वाटर है ग्रीन algae. एग्जाम्पल लिख दिया मैंने Spirogyra and Ulothrix. बट 10% ऑफ द ग्रीन algae इज मरीन. लिखते हैं 10% of green algae is marine. ठीक है. तो एग्जाम्पल अगर लिखे 10% वाले का, सो वी हैव Ulva and Chlorella. We have Ulva and Chlorella. ठीक है. So that is the marine algae and these are the freshwater algae. तो मैंने examples भी लिख दिए, तो याद रखना आप कि Spirogyra and Ulothrix belongs to the freshwater while the Ulva and Chlorella belongs to the marine habitat. एक और इंटरेस्टिंग बात अगर Chlorella के बारे में बताऊं आपको, so these are one of the biggest cells. Okay, they are made up of single cell with many nuclei. यहाँ पे लिख देता हूं मैं. Chlorella consists of one of the biggest cell with many nuclei. With many nuclei. ठीक है. Chlorella consist of one of the biggest cells. इनके पास one of the biggest cells available है with many nuclei. ठीक है. हैबिटेट की बात करें, so they are found in colder and warmer regions. So they are found in colder and warmer regions. ठीक है. कोल्डर और वार्मर रीजन्स में देखने को मिलेंगे. और अगर थैलिस की बात करते हैं, if we talk about the thallus, तो थैलिस इज, जो मैंने बताया फ्लैट स्ट्रक्चर जो होता है. ठीक है. तो अगर मैं थैलिस की बात करूं तो थैलिस में इन केस ऑफ green algae there is unicellular thallus as well as multicellular thallus. Unicellular and multicellular thallus आपको देखने को मिलेगा. एग्जाम्पल अगर देखें, so we have Chlamydomonas,
So we have the example that is Chlamydomonas and Chlorella. Chlamydomonas and Chlorella. While if I talk about the algae which has multicellular thallus, so we have the examples. We have Spirogyra. ठीक है, Spirogyra. Then we have Volvox. And then we have the Hydrodictyon. Hydrodictyon. ठीक है. Now these are the algae which have multicellular thallus and these are the algae which have unicellular thallus. अभी वॉल्वॉक्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वॉल्वॉक्स जो है इट इज द colonial form of algae. कौन? तो वॉल्वॉक्स इज द colonial form of algae. वाइल मैं हाइड्रोडिक्टियन की अगर बात करता हूं तो हाइड्रोडिक्टियन में आपको याद रखना है फ्लैजेला जो होता है एब्सेंट होता है. ओके, इन केस ऑफ हाइड्रोडिक्टियन द फ्लैजेला इज एब्सेंट. वाइल इन केस ऑफ वॉल्वॉक्स तो इट्स अ colonial form of algae प्लस फ्लैजेला क्या है? प्रेजेंट है. ठीक है, अब फ्लैजेला प्रेजेंट है, colonial form of algae है, तो इसका दूसरा नाम अगर मैं बताऊं आपको, इट इज टर्म्ड एज ग्लोब algae. क्या कहा जाता है? क्योंकि colonial form में होता है ना, तो इस तरीके से बॉल टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. ये algae सब साथ में आ जाते हैं algae और एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर बनता है. तो इट इज नोन एज द ग्लोब algae. प्लस एज इट हैज द फ्लैजेला इट कीप्स ऑन रोलिंग, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द रोलिंग algae. क्लियर है? ठीक है. सो जो वॉल्वॉक्स है, वॉल्वॉक्स के बारे में लिखा है, उसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट है. वॉल्वॉक्स कोलोनियल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. कोलोनियल फॉर्म मतलब काफी सारे algae साथ में आ जाते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, मैं रेड जो डॉट्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एज दी algae. तो ये सब क्या है? algae है और ये एक साथ में है यहाँ पे. एंड they form a colony, they are connected to each other and they would form a colony. तो एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. इसलिए मैंने क्या नाम लिखा है? ग्लोब algae नाम लिखा है मैंने, बिकॉज इट अपीयर्स लाइक अ ग्लोब. ठीक है. So this is the Volvox, a colonial form of algae. ठीक है. नाउ जो हाइड्रोडिक्टियन है उसमें फ्लैजेला एब्सेंट है और वॉल्वॉक्स में मैंने क्या बताया? फ्लैजेला प्रेजेंट है. अब हाइड्रोडिक्टियन की एक बात करता हूं तो मैं एक और यहाँ पे टर्म दूंगा कि हाइड्रोडिक्टियन इट एग्जिस्ट. इट इज ऑल्सो नोन एज वाटर नेट. मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं. इट इज नोन एज वाटर नेट. ठीक है. और यहाँ पे एक जो कंडीशन अराइज होती है दैट इज नोन एज हेटेरोट्राइकस कंडीशन. कौन सी कंडीशन? हेटेरोट्राइकस कंडीशन. So let's see what is heterotrachous condition. तो जो फिलामेंट्स होते हैं algae के, let's say if this is the surface, तो सम ऑफ द फिलामेंट्स आपको सरफेस के साथ पैरेलल ग्रो करते हुए दिखेंगे एंड सम ऑफ द फिलामेंट्स कैन ग्रो अपवर्ड्स. ठीक है. ये सरफेस के साथ ग्रो कर रहे हैं और थोड़े बहुत फिलामेंट्स में ऊपर की तरफ ग्रो करता हुआ दिखा रहा हूं. ठीक है. सो दिस इज द प्रोस्टेट फिलामेंट विच इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ द ग्राउंड.
and these are erect filaments, and these are prostate filaments because they are parallel to the surface of the ground. तो आप देख रहे हो कि यार this particular algae has two types of filaments, one are the erect, another are the prostate. So such condition is known as heterotrichous condition. Heterotrichous condition. So what is heterotrichous condition? When filaments exist in two forms. Filaments of algae exist in two forms. ठीक है? So erect filament and prostate filament. एग्जाम्पल अगर ले ले यहाँ पे द algae showing heterotrichous condition, जैसे मैंने अभी बता दिया था hydrodictyon is showing a heterotrichous condition. दूसरा नाम अगर लिखे so we have Freshella and एग्जाम्पल ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ. ठीक है, Freshella is the example. ठीक है, एक डायग्राम भी देख लेते हैं अपन यहाँ पे और कि how would a algae look like. So specifically I am talking about Chlamydomonas here. This is the chloroplast जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, and this is the nucleus, and it has this flagella, two flagella coming out from the tip. ठीक है, तो this is what, this is flagella, this is what, this is nucleus, and this structure that is chloroplast. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका मैंने बनाया है. So this is the structure of algae which is Chlamydomonas. ठीक है, this is the structure of Chlamydomonas. ठीक है, simple and easy. So this was all about green algae. अभी और देखें ग्रीन algae में, तो सेल वॉल की अगर बात करते हैं ग्रीन वॉल की, अगर सेल वॉल की बात करें, so the cell wall may we have the outer region and the outer and the inner region, outer and inner. So the outer cell wall is made up of pectose, while the inner cell wall is made up of cellulose. ठीक है, the outer cell wall is made up of pectose while the inner cell wall is made up of cellulose. ठीक है, so this was all about the green algae. Now let's move ahead and talk about the brown algae. ठीक है, ब्राउन algae की बात करते हैं. So brown algae are mainly marine in nature. They are mainly marine in nature. ठीक है, और हैबिटेट की अगर बात करें
So they are found in colder regions. They are found in colder regions. They are found in colder regions. और थैलस की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे भी यूनिसेलुलर थैलस और मल्टीसेलुलर थैलस देखने को मिलेगा. थैलस की अगर बात करें तो यहाँ पे आई एम सॉरी द यूनिसेलुलर थैलस इज एब्सेंट, ओनली द मल्टीसेलुलर थैलस इज फाउंड. ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने अभी ग्रीन आल्गे में क्या देखा कि यूनिसेलुलर थैलस भी है और मल्टीसेलुलर थैलस भी है. बट इन केस ऑफ द ब्राउन आल्गे unicellular thallus is absent, while multicellular thallus is present. ठीक है. अब मल्टीसेलुलर थैलस में भी अगर हम फर्दर देखें सो देयर इज branched and unbranched. We have unbranched filamentous colonial form जो होता है वो absent होता है. Unbranched colonial form absent. Only branched filamentous. Unbranched filamentous colonial form absent है, बल्कि branched filamentous colonial form is present. Branched filamentous कंडीशन देखने को मिलेगा. ठीक है. एग्जाम्पल की अगर बात करें सो वी हैव एक्टोकार्पस. देयर इज एक्टोकार्पस. ठीक है. विच इज गोइंग टू बी पैरेन्काइमेटस. और एग्जाम्पल दूसरे लिखे सो वी हैव सरगासम. We have examples like sargassum है, fucus है, and laminaria. ठीक है. क्लियर है. सो ये थैलस की बात हो गई. जो ब्राउन आल्गे होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट आल्गे. क्या लिखे? लार्ज साइज ऑफ ब्राउन आल्गे. ब्राउन आल्गे. ठीक है. दे कैन गो अप टू द साइज ऑफ 100 मीटर. 100 मीटर की साइज तक जा सकते हैं. Kelps is the name of the brown algae which reaches the height of 100 meters in size. ठीक है. And kelps we can take the example of Macrocystis. We can take the example of Macrocystis. ठीक है. नाउ डायग्राम अगर देखें ब्राउन आल्गे का, हाउ डज इट लुक लाइक?
This is the way it looks. ठीक है? So I'll write this down. This leaf-like structure जो आपको दिख रहा है, it's not leaf, it's leaf-like structure. It is known as frond. क्या कहा जाता है? Frond. तो frond is what? It's a leaf-like structure. और फिर we have the structure which keeps the algae attached to the surface. That is known as hold fast. ये जो structure है जो algae को attach रखेगा surface पे, that is known as hold fast. And this structure between the frond and the hold fast, that is known as stipe. क्या कहा जाता है? Stipe कहा जाता है. तो ये जो मैंने diagram बनाया है, this is specifically laminaria. ये जो डायग्राम मैंने दिखाया, दिस इज ऑफ लेमिनारिया. ठीक है? अब एक और डायग्राम देखते हैं फ्यूकस का. सो फ्यूकस में भी सेम सेटअप है, पर जो फ्रॉन्ड है वो फ्रॉन्ड क्या है? ब्रांच्ड है. इट इज ब्रांच्ड. द सेम स्ट्रक्चर. बट जो फ्रॉड क्या हो चुका है? वो ब्रांचिंग दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है? ब्रांचिंग दिखा रहा है. इस फ्रॉड के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज. देयर इज प्रेजेंस ऑफ एयर कैविटीज और द एयर सैक. ठीक है? तो यहां पे लिख देता अपन, दिस आर एयर सैक. ठीक है? और ये स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज ब्रांच्ड फ्रॉन्ड. बाकी द ऑल द थिंग्स आर सेम. दिस इज टाइप एंड दिस इज होल्ड फास्ट. ठीक है? So this is a branched frond. और highly branched अगर देखना है frond को, so we can take the example of Dictyota. Take the example of Dictyota. Dictyota की अगर बात करें तो सेम सेटअप है, बट ब्रांचिंग आपको ज्यादा देखने को मिलेगी. This is the structure of Dictyota. ठीक है? So you can see the frond is highly branched. Frond is highly branched. This is type. और नीचे की तरफ क्या होता है? Hold fast. ठीक है? So we have drawn 3 diagrams. One is of Dictyota, Fucus and Laminaria, which belongs to which? Which belongs to brown algae. ठीक है? Now सेल वॉल देख लेते हैं. तो सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, तो आउटर एंड इनर सेल वॉल देखने को मिलेगी. outer and inner cell wall. The outer cell wall
इनर सेल वॉल देख लेते हैं पहले. The inner cell wall is made up of cellulose. It is made up of cellulose, while the outer cell wall is made up of a special water absorbing substance which is known as hydrocolloids, which are termed as hydrocolloids. ठीक है, हाइड्रोकोलॉइड्स आर व्हाट, वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस. तो किस काम में आ रही है? इट प्रोटेक्ट्स द algae फ्रॉम ड्राइंग एंड फ्रीजिंग इफेक्ट. प्रोटेक्ट्स algae फ्रॉम ड्राइंग एंड फ्रीजिंग इफेक्ट. ठीक है. दूसरा अगर देखें, सो दे हैव द गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. हाइड्रोकोलॉइड्स दे हैव गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. प्लस ये जो हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं, दिस आर नॉन सल्फोनेटेड. दिस आर नॉन सल्फोनेटेड. सल्फर नहीं होता इनके अंदर. क्योंकि जो रेड algae है उसके अंदर जो हाइड्रोकोलॉइड्स प्रेजेंट है, दोज आर सल्फोनेटेड. इसलिए मैं पॉइंट यहां पे मेंशन कर रहा हूं, नॉन सल्फोनेटेड है. देन एज दे आर प्रेजेंट विद द algae, we can also term the hydrocolloids as phycocolloids. भी बोल सकते हैं. The other name of hydrocolloids as they are present in the, okay, मैं लिख देता हूँ पूरा पॉइंट के साथ, as present in algae, they can be termed as phycocolloids. They can be termed as phycocolloids. ठीक है. some of the examples अगर देखें, we have algene, fucine, algene, fucine, fucoidine, ठीक है. एंड यहां पे एक और लिख देता हूं मैं, फ्यूकस एंड लेमिनारिया, जिसका डायग्राम अपने बना रखा है. फ्यूकस एंड लेमिनारिया. ठीक है. अब एक और इंटरेस्टिंग बात इनके बारे में जो मैं बोल देता हूँ, फ्यूकस एंड लेमिनारिया आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स. ओके, मैं ऊपर लिखता हूँ. क्लियर है इतना? सो फ्यूकस एंड हाइड्रोकोलॉइड्स आर रिच सोर्स. फ्यूकस laminaria are good source of iodine. ठीक है. काफी ज्यादा अमाउंट में आपको आयोडीन मिलेगा. सो दे कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर. गोइटर आपको पता ही होगा, जब थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट नहीं हो पाती है, वो ठीक से सिक्रेशन नहीं कर पाती है, तो थायराइड ग्लैंड क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है. दैट कंडीशन इज नोन एज गोइटर. ठीक है. तो गोइटर को ट्रीट करने के काम में आ सकता है फ्यूकस एंड लेमिनारिया. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, दे आर यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ
hydrocolloids. They're used for extraction of hydrocolloids. ठीक है, simple and easy. Okay, so let's move ahead and talk about the red algae. So red algae is mostly marine. They are mostly marine and very few are fresh water. ठीक है, जैसे एक्सेप्शन वाली अगर मैं बात करूं, सो जैसे algae known as the frog spawn algae, यहाँ लिख देता हूं मैं frog spawn algae. ठीक है, एक्सेप्शन वेरी फ्यू आर फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में एक एग्जांपल मैंने दिया है फ्रॉग स्पॉन algae. ठीक है, दिस आर द algae which are found in great depth, काफी नीचे आपको देखने को मिलेंगे. Found in great depth. ठीक है, इन वाटर बॉडी या फिर इन वाटर लिख देते हैं, काफी नीचे आपको देखने को मिलेंगे. हैबिटाट अगर बात करें, सो दे रिक्वायर वार्म हैबिटाट फॉर द ग्रोथ. और थैलस की अगर बात करते हैं, सो थैलस में देयर इज यूनिसेल्युलर and multicellular thallus. Unicellular and multicellular thallus देखने को मिलेगा. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे पोर्फायरिडियम. Porphyridium, ठीक है, is an example of algae with unicellular thallus. ठीक है, now red algae अपन बोलते हैं, but it's not actually red algae. It is olive or blue in color. Actually red in color. ठीक है, तो एक्चुअल कलर क्या है उसका? दैट इज ब्लू और ऑलिव. दिस इज द एक्चुअल कलर ऑफ द रेड algae, ऑलिव या फिर ब्लू. ठीक है, नाउ डायग्राम अगर देखें, पॉलीसाइफोनिया का एक डायग्राम देख लेते हैं. तो काफी बेसिक डायग्राम है. इस तरीके से आप ब्रांच स्ट्रक्चर्स देखोगे. ठीक है, सो दिस इज पॉलीसाइफोनिया. फिर सेल वॉल की अगर बात करें, तो यहां पे भी आउटर एंड इनर सेल वॉल है. So the outer
and the inner. The inner cell wall is made up of cellulose. ठीक है, बल्कि जो आउटर सेल वॉल है इट इज ऑल्सो अ हाइड्रोकोलोइड, ठीक है, और फाइकोकोलोइड. इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोकोलोइड या फिर फाइकोकोलोइड. हाइड्रोकोलोइड या फिर फाइकोकोलोइड बोल सकते हैं. बट यहां पे इट इज हाईली सल्फोनेटेड. जैसे मैंने बताया था ब्राउन आल्गी में जो हाइड्रोकोलोइड था वो सल्फोनेटेड नहीं था, बट याले केस में इट इज हाईली सल्फोनेटेड. ठीक है. नाउ दूसरी बात अगर यहां पे देखें रेड आल्गी के बारे में, दिस इज क्लियर, हाईली सल्फोनेटेड. अब रेड आल्गी के बारे में अगर दूसरी बातें देखें, वी हैव सम प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और विच आर मेड फ्रॉम रेड आल्गी. जैसे कि वी हैव अगार है, फ्यूनोरी है, then there is phenori and there is carrageen. ठीक है. There is carrageenine. ठीक है. सो दिस आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आल्गे. अगार इज यूज्ड इन आइसक्रीम, जेल बनाने के काम में आता है. ओके, देन देयर इज, दिस आर ऑल पॉलीसैकेराइड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड आल्गे. ठीक है. अब जैसे कि अगार की अगर मैं बात करता हूं, दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलारिया. तो दोनों जो रेड आल्गे है ये किस काम में आते हैं? यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अगार. यूज्ड फॉर extraction of agar, and that is the reason they are also termed as agarophytes. They are termed as agarophytes. ठीक है, because they are used in the extraction of agar. So agar is one of the products that is obtained from red algae. Phonoria, it's also one of the products, and carrageenan is also one of the products that is obtained from red algae. So gelidium and gracilaria, ये दो जो रेड आल्गे है ये किस काम में आते हैं? दे आर यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ अगार. इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता है? दे आर टर्म्ड एज एगोरोफाइट्स. दे आर टर्म्ड एज एगोरोफाइट्स. ठीक है. क्लियर है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. अपन रेड आल्गे, ब्राउन आल्गे एंड ग्रीन आल्गे के बारे में बात कर ली डिटेल में काफी सारी. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. गो थ्रू द लेक्चर प्रॉपर्ली. ठीक है. अच्छे से नोट्स बना लेना और डायग्राम्स भी अपने डिस्कस कर लिए, लेबल कर लिए. ठीक है. सो मेक द नोट्स प्रॉपर्ली. आप लोग नोट्स बनाने के बाद मुझे व्हाट्सएप नहीं कर रहे हो आजकल, सो मेक श्योर आप व्हाट्सएप करो. ठीक है. और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है. तो मेक श्योर कि यू गो थ्रू दी लेक्चर प्रॉपर्ली. क्लियर है. प्रीवियस लेक्चर्स की भी मेरे पास कोई नोट्स आई नहीं है, किसी ने मुझे नोट्स फॉरवर्ड नहीं करी है. ठीक है. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. तो जब अपन रेड आल्गे और ब्राउन आल्गे के बारे में बात कर रहे हैं तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज गोइंग टू बी सल्फोनेटेड एंड नॉन सल्फोनेटेड. ठीक है. जो सेल वॉल रेड आल्गे में है इट इज हाईली सल्फोनेटेड, व्हाइल द सेल वॉल व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्राउन आल्गे इट इज नॉन सल्फोनेटेड. ठीक है. ओके, सो आई विल कीप दिस मच फॉर द सेशन. थैंक यू सो मच.